In the bustling streets of India, amidst the chaos and cacophony, there exists a world of resilience and hope embodied by the street entrepreneurs. These individuals, with their unwavering determination and boundless spirit, paint a vivid picture of perseverance in the face of adversity. Imagine walking down a narrow alleyway, the aroma of spices lingering in the air, and your senses overwhelmed by the vibrant colors of street stalls. Here, you'll encounter individuals who have turned their dreams into reality through sheer grit and tenacity. Meet Rajesh, a street vendor who sells handmade jewelry on the sidewalks of Mumbai. With calloused hands and a warm smile, he weaves intricate patterns into each piece, pouring his heart and soul into his craft. Despite the challenges he faces, from fluctuating foot traffic to unpredictable weather, Rajesh remains undeterred, fueled by the passion to provide for his family and create beauty amidst chaos. Then there's Priya, a young woman selling fragrant flower garlands outside a temple in Mumbai. With each delicate blossom carefully strung together, she carries on a tradition passed down through generations. As she threads each petal, her hands dance with a grace born of love and reverence for her culture. For Priya, every garland she sells is not just a transaction, but a connection to her heritage and a source of pride. But behind the hustle and bustle lies a world of emotions: joy, frustration, hope, and despair. For every success story, there are countless struggles and setbacks. Yet, it is this resilience that defines the spirit of street entrepreneurship in India. As the sun sets and the city slows its pace, these unsung heroes continue their labor of love, embodying the essence of perseverance and determination. They are the heartbeat of the streets, the guardians of tradition, and the architects of their own destinies. In the tapestry of India's vibrant landscape, the street entrepreneurs weave a thread of courage and resilience, reminding us that greatness often arises from the humblest of beginnings. They are not just sellers of goods. They are storytellers, artists, and dreamers, breathing life into the bustling streets of India. Let's hear some of their experiences. आप कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ पर मैं 3-4 साल से कर रहा हूँ। सुबह कितने बजे आप दुकान खोलते हो? दुकान कम से कम 7 बजे करीब। और कोरोना में आपका कैसा चला था धंधा? ये तो नहीं चलता था, हम लोग गाँव चले गए। तो फिर ऐसा ना सब बंद कर दिया था यहाँ, सब लोग पूरा मार्केट बंद हो गया था ना, हम लोग भी गाँव चले गए। तो फिर तब आप ऐसे पैसे वगैरह कैसे मैनेज कर रहे थे? मतलब तब धंधा बंद हो गया था, तो आप फिर कैसे मैनेज कर रहे थे सब? पड़ोसियों से जो हैं उनसे आदमी लेके करता है। अभी आगे पर किसी न किसी से लेता है, फिर देता है कमा के। भैया, जब गवर्नमेंट ने 10,000 रुपीज़ का लोन का देने का प्लान किया था, तभी वो आपको मिला था क्या? अभी हमारा खत्म भी हो गया लोन वापस, रिटर्न भी हो गया। हाँ। तो आपको डिफिकल्टीज फेस करना पड़ा था वो लोन लेने के नहीं, टाइम? हम लोग के खाते में था, उनका पैसा खाते में म्युनिसिपैलिटी में वो खाते से कट जाता है, काट लेता है। तो भैया अभी फिर आपको यहाँ पर काम करना पड़ता है, तो फिर किसी को हफ्ता वगैरह देना पड़ता है? नहीं, उनका लाइसेंस है। लाइसेंस है? In the labyrinthine streets of India, where the scent of spices mingles with the fragrance of fresh blooms, lies a world of beauty and struggle, the realm of flower street entrepreneurs. With nimble fingers and hearts filled with dedication, these artisans weave tales of tradition and resilience into every petal they thread. आप कब से यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो? 40 बरस से। तो आपको क्या क्या तकलीफ़ें होती है? आप बिज़नेस चलाते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सुबह से स्टार्ट करते हो, मतलब सबको लगता है 11 बजे खोला दुकान और फिर शाम तक बंद कर दिया, तो क्या क्या प्रॉब्लम आता है? कब सुबह कितने बजे आते हो यहाँ पे? यहाँ पे 5 बजे सुबह आते हूँ। सुबह 5 बजे से दोपहर को 1 बजे से रहते हम लोग। तो फिर अभी कोविड का टाइम आया था, तो आपको वो टाइम पे क्या प्रॉब्लम होता, मतलब बिज़नेस का क्या हालत हुआ? उस टाइम तो हम तो गाँव गए थे भैया, इधर बिजनेस का मतलब कोई चालू था, कोई बंद था, इधर ऐसा है, उसको टोटल बंद ही था। तो फिर आपने कोई गवर्नमेंट के स्कीम में अप्लाई किया है? वो गवर्नमेंट का एक स्कीम है ना जो 10,000 रुपये का लोन देता है, तो आपने उसका कुछ जानकारी है आपको? नहीं, उसकी जानकारी नहीं आप लोगों को। और आपको कुछ ऐसा हफ्ता भरना पड़ता है? कोई पुलिस का प्रॉब्लम होता है यहाँ पे दुकान लगाने का? है ना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, प्राइवेट मार्केट है ये, ऐसा प्रॉब्लम कुछ आता नहीं, पुलिस को प्रॉब्लम नहीं अभी।
तो क्या लगता है मतलब आपको कि यहाँ पे कोई बिजनेस लगाएगा तो इजी है ये करना, मतलब कि बहुत तकलीफ है ये काम करने में, मतलब सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है और सामान लाना पड़ता है? ऐसा कुछ तकलीफ नहीं है क्योंकि आप लोग आदत पड़ा है ऐसा ईजी होता है अभी आदत पड़ा सब तो क्या करना पड़ता है ऐसा। From the crack of dawn till late into the night, these hardworking individuals brave the elements, the competition, and the uncertainty of the market to earn a livelihood for their families. Navigating through crowded streets, dodging traffic, and carrying heavy loads, these vegetable street entrepreneurs embody resilience and determination in every step they take. अंकल आप कितने टाइम से यहाँ पर धंधा कर रहे हो? हमारा हो गया है 42 ईयर्स। आपको क्या क्या तकलीफ होता है? तकलीफ क्या, थोड़ा बारिश में होता है, बाकी क्या है अपना धूप में होता है, बाकी प्रॉब्लम नहीं है। और अभी कोविड आया था तो अभी आपने क्या किया? कोविड में तो मेरा क्या है, वो बच्चे लोग जॉब करते हैं, इसके हिसाब से मेरा निकल गया, नहीं तो भूखे मरने की नौबत थी। 8-9 महीना खोला ही नहीं, हम पूरा घर पे ही था। और अभी वो बीएमसी ने लोन का वो किया है 10,000, वो आपने को मिला था? 10 भी लिया, 20 भी लिया, 50 भी लिया, तीनों लिया है मैं। और आपने पे भी कर दिया? पेमेंट भी किया। From selling delicious street food to offering handmade crafts, these individuals embody the spirit of entrepreneurship, turning their dreams into reality on the pavement. तो अंकल आप इधर कब से बिजनेस कर रहे हो? विदिन लास्ट 45 ईयर। तो अंकल आपको इधर कुछ बिजनेस करने में कुछ प्रॉब्लम आता है? नहीं, ऐसा है ना सर, मैंने 87 में ग्रेजुएशन किया था हिंदुजा कॉलेज में, और मैं यहाँ ओनली स्ट्रीट पे एक लाइसेंस होल्डर हॉकर में ही हूँ। अच्छा। तो मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मैं लीगली मैं रिटर्न फाइल करता हूँ 87 से, मेरा ब्लैक एंड वाइट पैन कार्ड है। अच्छा। और मैं अपने लिमिट में ही रहता हूँ, मेरे को जितना बीएमसी ने जो लाइसेंस दिया है ना उसी लिमिट में रहता हूँ। और मैं कचरा वचरा भी डस्टबिन में जाके रात को जमा करके डस्टबिन में फेंकता हूँ, यहाँ वहाँ कचरा नहीं फेंकता हूँ। अच्छा, तो आपको कोविड के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हुआ था? कोविड के टाइम में कुछ हुआ तो नहीं, हम लोग को बीएमसी ने लोन भी दिया था 10,000 का, फिर 20,000 का लोन दिया था वो प्रधानमंत्री योजना के तहत। तो बस थोड़ा 1-2-3 महीना प्रॉब्लम हुआ था, बाद में तो हम लोग वो इवन एंड ओड डेट में चालू रहता था 4-5 बजे तक, तो थोड़ा बहुत खोलते थे तो बिजनेस तो होता ही था। और आपको इधर मतलब कस्टमर्स मिलते हैं या परेशान करते हैं? नहीं, कोई परेशानी तो नहीं होती है। जिनके पास लाइसेंस नहीं उनको थोड़ी बहुत परेशानी, मेरे पास तो लाइसेंस है और मैं मेरे लिमिट में ही बैठा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप जो बिजनेस करते हो आप उसका रॉ मटेरियल मतलब आपका ये प्रोडक्ट्स किधर से लेके आते हो? मतलब कुछ आपको ट्रैवल करके लाना पड़ता है? नहीं, ट्रैवल्स नहीं, यहाँ होलसेल मार्केट है अब्दुल रहमान स्ट्रीट में, सब वहाँ स्टेशनरी कटलरी की सब आइटमें मिल जाती है। और आपको मतलब अभी समझो किसी नए बच्चे को आपको अगर कुछ करना रहेगा, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि एमबीए के ज़्यादा मतलब इसकी स्ट्रीट एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा अभी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो अभी आपको कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मेरे हिसाब से तो स्ट्रीट में नहीं करे चलेगा, जो जॉब कर ले ना छोटा मोटा वही अच्छा है। चलेगा सर, क्या है स्ट्रीट में हॉकर्स की कोई इज्जत नहीं रहती, कितना भी कमावे है हॉकर्स ना, दैट्स ऑल। वो मैं भुगत चुका हूँ इतने सालों से, मेरे मैरिज में भी प्रॉब्लम हुआ था, सब बहुत बोले स्ट्रीट हॉकर्स है, क्या करता होगा क्या नहीं। मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। पढ़ लिख के अच्छा कहीं जॉब करो, भले कम मिले थोड़ा पर अच्छा है। या हम लोग का 365 डे, सुबह अर्ली मॉर्निंग 9 से लेके रात को 11 बजे तक हम लोग ड्यूटी देते हैं, कोई हॉलीडे नहीं, कुछ भी नहीं। खाली एक होली का हॉलीडे मिलता है, गणपति विसर्जन का हॉलीडे मिलता है, और कोई हॉलीडे नहीं मिलता हम लोग को। बाकी पूरा टफ लाइफ है। बाकी टफ लाइफ है, धूप बारिश सर्दी जो भी हो हमको यहाँ ड्यूटी देना पड़ता है। तो अंकल आप यहाँ पे कब से बिजनेस कर रहे हो? 23 साल हो गए। तो अभी इन 23 साल में आपको क्या क्या प्रॉब्लम, मतलब आपने जब से चालू किया अब तक क्या क्या मतलब आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है रोज़? टपटक होता है, कभी बीएमसी का लफड़ा, कभी पुलिस का लोचा, लफड़ा चलता रहता है। तो उसमें आपको हफ्ता भरना पड़ता है उनको? हफ्ता का बात ही नहीं है, हफ्ता नहीं। तो लाइक क्या करते हैं वो लोग आके, मतलब है ना, कुछ नहीं, जैसे कभी कोई आया, कोई बड़ा नेता वेता आया तो थोड़ा हटाना पड़ता है। कोविड के टाइम पे आपको क्या तकलीफ हुई थी जब आपका ये पूरा बिजनेस ये सब बंद हो गया, तब आपने क्या किया था? कुछ नहीं, बंद रखा था। तो आप फिर गाँव गए थे अपने, तो वो टाइम पे आपने कैसे मतलब मैनेज किया सब? मैंने कर्जा वर्जा लेके किया, कर्जा लिए। तो आपको कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, लाइक कोई लोन ये सब किया आपने वो स्कीम के अंदर? कुछ नहीं मिला। मतलब यहाँ पे जो पुलिस ये सब है वो लोग हेल्प करते हैं कोई लोन वोन करने के लिए आपको? कोई नहीं, कुछ नहीं। तो
कभी ऐसे बीएमसी वाले आके ऐसा हटाए नहीं आपका ये? होता है कभी कभी, होता है लफड़ा तो हटाना पड़ता है। और मतलब अगर समझो किसी को ये बिज़नेस चालू करना है तो उसको मतलब कैसा है, स्टार्टिंग में बहुत इजी रहेगा कि बाद में मतलब बहुत तकलीफ आता रहेगा? तो अपने बच्चे लोग को पढ़ाया मैंने, बाकी अब दूसरे लोग का काम नहीं है, बहुत टेंशन वाला काम है ये बिजनेस। आपके पास जो माइक करेंगे तब आपको आपका नाम? शेख मुनीर हुसैन। आप ये जो आपका फ़ोन के कवर का बिजनेस है, आप कब से कर रहे हो ये? 2016। तो जब कोविड का टाइम आया था तब आपका ये बिजनेस कैसे चला और क्या कुछ प्रॉब्लम्स आए, नहीं आए, ऐसा कुछ? हाँ, प्रॉब्लम्स तो सबके ही साथ हुआ था। हाँ। बहुत स्लो हो गया था, काम करना डिफ़िकल्ट हो गया था, लेकिन एक्चुअली उसके बाद का प्रॉब्लम उसके बाद स्टार्ट हुआ। क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ उसके? बिज़नेस बहुत स्लो हो गया, रोटेशन हम लोग का पूरा रुक गया, साइकिल पूरा जो रहता है बिज़नेस का वो ख़त्म हो गया ऐसा। तो आपका जो ये स्टॉक आता है और मतलब आप कहाँ से, होलसेल में उठाते हो या फिर कैसा आता है? हाँ, होलसेल में। होलसेल से आता है। तो अगर आपके जो सप्लायर्स है अगर उससे डिले होता है तो आपके स्टॉक में कुछ प्रॉब्लम होता है? हाँ, ऑफकोर्स उनका डिले होगा तो हम लोग का डिले होगा ही। ठीक है। और आपको ऐसा ये पता है कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स दी है, जैसे 10,000 आपको एक स्ट्रीट वेंडर्स अगर काम करते हैं, तो वो स्कीम के बारे में आपको पता है? मैंने सुना था बीच में, बट उसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल मेरे पास है नहीं। ठीक है। और ऐसा कुछ पुलिस वाला या कुछ बाकी म्यूनसिपालिटी से कुछ प्रॉब्लम ऐसा? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, बाकी सब नॉर्मल चल रहा है। तो आपके जो पीक आवर्स रहते हैं, जो आपके धंधे के टाइम पे रहता है, वो क्या है पीक? 5 to 8। 5 to 8 रहता है। उसके पहले आप सिर्फ प्रिपेयर करते हुए सब चीज़ें के लिए? उसके बाद बीच में चलते रहता है थोड़ा थोड़ा, बट एकदम पीक आवर्स बोल सकते हो आप 5 to 8 ही रहता है। और अगर कुछ नया फ़ोन आता है उसके बारे में आप कितने टाइम के बाद आपको लगता है कि वो आपके पास कब हो जाता है, कि जल्दी से आपको समझ में आता है कि ये आ रहा है? जैसे लॉन्च हुआ, फॉर एग्जांपल समझो आज 15 तारीख को लॉन्च होने वाला है, तो उससे 2-3 दिन पहले हमारे पास स्टॉक आ जाता है और उसकी रिक्वायरमेंट मतलब 1 हफ्ते के बाद आना स्टार्ट हो जाती है। तो 15 से 7 या 8 दिन पकड़ लो आप, 20 to 23 को क्लाइंट आना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। और इसके पहले मतलब इसके अलावा कुछ आपका बिजनेस था कि यही आपने सबसे पहले स्टार्ट किया? यही कर रहे हैं। ठीक है। As the sun dips below the horizon and the echoes of the bustling streets fade into the night, we bid farewell to the tireless spirits who animate the heart of India's streets, the street entrepreneurs. Their stories are woven into the fabric of our communities, their struggles a testament to the resilience of the human spirit, and their perseverance an inspiration to us all. So as we bid adieu to another day, let us remember the faces, the stories, and the indomitable spirit of India's street entrepreneurs, for they are the true architects of hope and resilience in our bustling cities.